Hello guys, welcome back to Edugiri. I hope all of you are doing great. 6 Feb का द हिंदू एनालिसिस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. टॉक्स ऑन इंडिया यूएस डील जॉइंट स्टेटमेंट इन 4 to 5 days. तो 4 to 5 days में हमारे पास एग्जैक्ट पिक्चर आ जाएगी. ठीक है ना. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमें मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग मिल जाएगा. आर टेरिफ आर most favored nations tariffs that can only be cut after the legal agreement. ठीक है ना. तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि इंडिया यूएसए trade agreement. Now, what is the trade agreement? It is an agreement. It is tariff जो लग रहे हैं वो क्या होने वाले हैं? Most favored nation. ठीक है ना. तो once the joint statement is there, it need to be converted into a legal agreement. The legal agreement will give us authority to reduce our tariff. Their tariffs are executive tariffs and so can be amended by executive orders. Our tariffs are Indian tariffs are most favored nation, MFN tariffs that need a legal agreement has been signed. MNF, what are NMF tariffs? MNF tariffs are those that World Trade Organization members impose on goods from other member nations. Now, MNF tariffs are important. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे पे लगाते हैं ये टेरिफ्स. मोस्ट फेवर्ड नेशन के टेरिफ्स हैं ये. एंड ऑब्वियसली ही हिमसेल्फ इज सेइंग कि डिटेल्स हमें बाद में पता चलेंगे. 18 पीपल हैव बीन किल्ड इन रैट होल माइनिंग जो कि इलीगल है. रैट होल माइनिंग was rat hole coal mining banned by NGT in 2014 by National Green Tribunal in 2014. So in 2014 rat hole coal mining कोई प्रॉपर एजेंडा नहीं होता है. छोटे छोटे होल करते हैं उसमें लोग घुसा देते हैं. अब 18 पीपल हैव डाइड in this tragedy. Okay. Center signs tripartite pact to create Naga authority. This is very very important. लिखेंगे center signs tripartite pact to create Naga authority. Now what is tripartite contract? ठीक है ना. pact, sorry, tripartite means 3 parties are involved. ठीक है ना. tripartite means 3 parties are involved and what is going to agreement क्या है? for creation of frontier Nagaland territorial authority, that is FNTA, फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी. इनको कुछ पावर्स दिए जाएंगे. ठीक है ना. अग्रीमेंट हैज बीन साइंड between Nagaland government, Eastern Nagaland People's Organization
that is ENPO, and Union Home Ministry. So these three have signed the agreement basically. The Union Home Ministry, Eastern Nagaland People's Organization, and the Nagaland government, all of them have signed. The agreement was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah. Now we need to know who is the CM of Nagaland. So CM of Nagaland is Nefu Rio. Nefu Rio is the Chief Minister of Nagaland. So Nefu Rio is the Chief Minister of Nagaland. ठीक है. The agreement paves the way. Now what is the agreement all about? So agreement paves the way for creation of FNTA for 6 districts of Nagaland. ठीक है ना. 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नागालैंड के लिए एफएनटी हो गया. और एफएनटी क्या करेगी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफएनटी? फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी. एंड इट इज 6. ये यहाँ से नोट करेंगे पूरा. और क्या होगा? डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ 46 सब्जेक्ट्स में ये पावर हो जाएगी इनकी. एंड दे आर गोइंग टू गवर्न द टेरिटरी, दो 6 एरियाज. एफएनटी इज गोइंग टू गवर्न इन दोज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स जो इसमें साइन किए गए. ठीक है. कुकीज और ग्रुप्स बायकॉट ट्राइबल एमएलए. सो मणिपुर में who is the new CM in Manipur? Please name. And the old CM also, and when he resigned as CM. ठीक है, ये बताएंगे कमेंट्स में. शाह लॉन्चेस भारत टैक्सी इन दिल्ली एनसीआर. तो हमने पढ़ा था भारत टैक्सी इज द फर्स्ट कोऑपरेटिव रन राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म. तो भारत टैक्सी कहाँ कहाँ पर आया है? अमित शाह ने लॉन्च किया है. शाह लॉन्च्ड भारत टैक्सी in Delhi NCR and Gujarat. दिल्ली एनसीआर और गुजरात में भारत टैक्सी लॉन्च किया है अमित शाह ने. Addressing an event after launching the service, Mr. Shah said rival ride-hailing platforms have reduced commission and are offering many other incentives, seeing the success of Bharat Taxi in pilot operation. तो यहाँ पर Bharat Taxi, which has been established by India's top 8 cooperative organization, including dairy major Amul, will enhance drivers' income. तो कमीशन जो ज़्यादा लेते थे, ठीक है ना, वो कम होगा. मतलब ड्राइवर्स को अच्छा पेमेंट मिलेगा. Bharat Taxi has been established by India's top 8 cooperative organizations includes अमूल. तो अमूल भी है उसके अंदर. ठीक है ना. उसके बाद सेलफोन बैन इन हिमाचल प्रदेश स्कूल्स फ्रॉम 1 मार्च. सेलफोन बैन इन हिमाचल प्रदेश schools from 1 मार्च. तो स्कूल्स, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हैं चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, किड्स कैन नॉट टेक सेल फोन टू स्कूल्स. ये हिमाचल प्रदेश स्टेट ने किया है बैन. यूनियन बजट began reflecting greater climate concerns from 2021 COVID-19 के ड्यूरिंग. तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो इन्होंने किया है, क्लाइमेट चेंज बजट में क्या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ये लेकर आए हैं. ठीक है. बजट के अंदर दे हैव टॉक्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, जिसको ये CCUS बुला रहे हैं. ठीक है ना. इसके अंदर ₹20,000 करोड़ निकाले हैं इसके लिए. ठीक है ना.
तो ये किसके लिए रेलेवेंट है? रेलेवेंट टू सेक्टर्स वेयर emissions are embedded in production process। मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर ही emissions हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज का सिस्टम, ठीक है ना। बट देर हैव वाइल 5 ब्रॉड सेक्टर्स रिसीव्ड अटेंशन इन बजट। तो जो पॉल्यूटिंग सेक्टर्स हैं बेसिकली उनके ऊपर अटेंशन दिया गया है बजट में, और ये इसको भी हो सकता है टू काउंटर सीबैम, ठीक है ना। टू काउंटर सीबैम, वी हैव टॉक्ड अबाउट सीबैम ऑलरेडी। सीबैम का फुल फॉर्म इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है ना। will impose, now this is European Union's concept, what they are going to do, impose carbon costs on imports of high emission products। अब मान लो इंडिया में कोई पेन मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है ना, ₹10 का हो रहा है, वो बेच उसको 15 में रहे हैं, 20 में रहे हैं, ठीक है ना। अब यूरोपियन पेन जो वो ₹25 में बन रहा है क्योंकि उन्होंने ऐसी मशीनरी लगा रखी है कि पोल्यूशन ना हो। तो अब यूरोप वाले इस ₹20 के पेन के ऊपर भी टैक्स लगाएंगे कि अच्छा इतना पोल्यूशन है, हम टैक्स लगाते हैं तुम्हारे ऊपर। तो दिस इज सीबैम, ठीक है ना। और ये इंडिया को बड़ा कुछ कुछ सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा ही हिट करेगा, ये लग जाएगा 2026 से, ठीक है। पीएम, उसके बाद और कौन कौन सी स्कीम्स है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो इसमें क्या है? दिस इज अ रूफटॉप सोलर स्कीम, ठीक है ना। रूफ पे जो सोलर लगेंगे, ठीक है ना, उससे जो है ऑब्वियसली लोगों को बिजली जो है वो मुफ्त मिल पाएगी, तो गवर्नमेंट हेल्प करेगी रूफटॉप पे सोलर लगवाने में। उसके बाद है पीएम कुसुम, इसमें सोलर एनर्जी पंप्स लग रहे हैं, मतलब सोलर यूज़ करते हुए, सोलर एनर्जी यूज़ करते हुए इरिगेशन पंप्स चलेंगे। तो ये एग्रीकल्चर के लिए स्कीम है, ठीक है ना। तो ये स्कीम्स के बारे में, और ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज से हेल्प करते हैं बिकॉज सोलर इज़ अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर बात हो रही है इन्वायरमेंटल लॉज की, कि सुप्रीम कोर्ट ने देखो पहले रेट्रोस्पेक्टिव क्लियरेंस मना करी, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले अरावली रेंजेस के बारे में बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अग्री कर लिया कि 100 मीटर्स तक के जो हिल्स हैं उनको ही हम अरावलीज मानेंगे, बाकियों को अरावली नहीं मानेंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा माइनिंग हो सकती थी बाकी सब में, ठीक है। फिर वो यहाँ पर बात कर रहे हैं वना शक्ति वाली जजमेंट की, वना शक्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब वना शक्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की क्या जजमेंट है? देखो, वना शक्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो जजमेंट है, इसके अंदर अलाउड रेट्रोस्पेक्टिव इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस, ठीक है ना। इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस अलाउड थी रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी, ठीक है ना, गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं ली कि इन्वायरमेंटली ये अप्रूव्ड है या नहीं है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर ली, बना लिया या बन रहा है, तब आप जाके अप्रूवल ले रहे हो, मतलब पिछली डेट से। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पिछली डेट से आप अप्रूवल ले रहे हो। दिस वॉज अलाउड, वॉज हेल्ड वैलिड, ठीक है ना, एक पॉइंट तक, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में डिक्लेयर्ड वायलेटिव, कह दिया कि नॉट अलाउड, ठीक है ना। और फिर अगेन इन दिसंबर 2025 इट वाज अलाउड। दिसंबर 2025 में रेट्रोस्पेक्टिव अलाउ किया, रेट्रोस्पेक्टिव अलाउड, ठीक है ना, कि रेट्रोस्पेक्टिव ले सकते हो बिकॉज बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रखी हैं, बहुत नुकसान होता है। अब दूसरा फिर ये बात कर रहे हैं कौन सी वना शक्ति के बाद, ये बात कर रहे हैं जुडिशियल सैंक्शंस। सिमिलरली जुडिशियल सैंक्शंस
to the destruction of 158 mangroves for Adani Cementation Limited 2025 in Raigad, Maharashtra. ठीक है ना. अब ये so basically Bombay High Court allowed that, you know, to cut 158 mangrove trees for putting for the supply, so that traffic could be reduced and supply could happen through the way where the trees were, something on that sort. So that is what he's saying, that this was allowed. And you know, the courts are also allowing such things. Okay, so this was Adani cementation case. And then the third thing we are going to talk about is the Char Dham highway. ठीक है ना. Char Dham highway में also Supreme Court held that, you know, this is not good for the Himalayas, but for our security this is required. So Char Dham, then Aravali, we can note down the Char Dham ke andar the court recognized this. You can note under Char Dham. ठीक है. And then you can note about the Aravali's also. ठीक है ना. This is you can note for the Aravali's. ठीक है ना. तो ये सब आर्टिकल्स हैं. उसके बाद आगे चलेंगे. एंड यू कैन ऑल्सो नोट द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव, नॉट द फंडामेंटल राइट्स, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज दैट हैव बीन टॉक्ड अबाउट इन दिस आर्टिकल. उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन बायो फार्मा शक्ति स्कीम, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इंडिया को. बायो फार्मा शक्ति स्कीम, ठीक है ना. इट इज अ ₹10,000 crore government initiative, will transform India into a manufacturing hub for biologics and biosimilars. ठीक है ना. ये तो बायोशक्ति है, बायो फार्मा की स्कीम है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन के लिए. ठीक है. उसके बाद और क्या स्कीम लेकर आ रहे हैं. सेटअप 3 new national institutes of pharmaceutical education and research, that is NIPER, and modernize 7 existing units. Okay, this one is 1, this one is 2, and then we have establishing a second Neem Hans campus in North India, and 2 upgraded national mental health institutes. ठीक है ना. उसके बाद the finance minister has been rather generous, a new defense budget. So defense budget 2% of the budget. Defense budget was 2% of budget, which is great. इससे पता चलता है कि हम डिफेंस को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं. वर्ल्ड की हालत बुरी हो रखी है, तो हम देख रहे हैं कि भाई
Now, end of New START treaty. Now, what is basically New START treaty? So, New START treaty जो थी, this was a treaty between Russia and USA. ठीक है ना? New START treaty stands for New Strategic Arms Reduction Treaty, which officially expires on 5th of Feb 2026. So ये treaty क्या कहती थी? It was the last agreement that was there between US and Russia with regard to the nuclear, and it limited the number of nuclear that both the countries could have. They had entered in the agreement on 5th Feb 2011, and it was to limit the number of nuclear agreements. ठीक है ना? तो न्यूक्लियर अग्रीमेंट्स क्या बोल रही हूँ मैं? नहीं, द नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. तो आप पढ़ते हैं इसको. आफ्टर एंटरिंग इनटू फोर्स ऑन 5th February 2011, न्यू स्टार्ट सेट अप वेरीफाइबल limits on the strategic offensive arms of both nations, including capping the number of deployed warheads to 1550, and required both parties to reach these limits within 7 years and maintain them thereafter. So basically number of nuclear warheads पे limit लगाया था. ठीक है ना? तो ये था, और विच वॉज अ गुड थिंग कि दोनों ने लिमिट करा था, इंस्पेक्शन भी अलाउ कर रहे थे, तो ये नोट करेंगे. ठीक है ना? द ट्रीटी ओरिजिनली वाज सेट टू एक्सपायर इन 2021, बट बाइडन ने इसको 2023 के अंदर 2021 में एक्सपायर होना था, बट फिर बाइडन ने इसको 5 ईयर्स से एक्सटेंड कर दिया था. जो बाइडन हु वाज द प्रीवियस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, 2023 के अंदर रशिया ने इसको इससे विड्रॉ कर लिया था, बिकॉज यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई थी और यूएस पूरी पूरी हेल्प कर रहा था यूक्रेन की, तो रशिया गुस्सा हो गया था. तो ये भी नोट कर लेंगे. ठीक है. उसके बाद यूएन ह्यूमन राइट्स एजेंसी कह रही है कि भैया हमारा सर्वाइवल मोड चल रहा है, हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि यूएसए ने इनको पैसे देने बंद कर दिए हैं. तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये सारी एजेंसीज जो थी, ये जो किसी भी देश को बुरा भला क्यों बोलती, भाई इनको पैसे ही उनसे आ रहे थे जब. ठीक है ना? बेटर डेज सीम टू बी अहेड फॉर द कंट्रीज इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर. डिस्कॉम्स जो होती हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, उनको डिस्कॉम्स बोलते हैं. तो वो कह रहे हैं कि उनके लिए अच्छे दिन आने वाले हैं. आफ्टर वीक्स ऑफ अनसर्टिनिटी एंड मिलिट्री टेंशंस इन पर्शियन गल्फ, ईरान कंफर्म्ड ऑन थर्सडे दैट इट वुड होल्ड न्यूक्लियर टॉक्स विद यूएस. तो ईरान टू होल्ड लिखेंगे, ईरान टू होल्ड न्यूक्लियर टॉक्स विद यूएसए इन ओमानी कैपिटल. ओमानी कैपिटल कौन सी है? मस्कट. ठीक है ना? उसके बाद द वाइट हाउस सेड, मैं कुछ नहीं इसमें. पाक concludes offensive against militants, 216 killed. Pakistan military said on Thursday that it had concluded a week-long security operation in Balochistan. ठीक है ना? कौन सा इसको ऑपरेशन को कह रहे हैं? पाकिस्तानी मिलिट्री launched its intelligence driven Rad al Fitna 1 countering chaos operation. ठीक है ना? अगेंस्ट इन बलोचिस्तान. क्यों? क्योंकि बलोचिस्तान में बहुत उल्टा पुल्टा हो रहा है. बलोचिस्तान वाले, मतलब बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो बहुत कुछ कर रही है, तो उनके लिए ये ऑपरेशन. इंडिया जीसीसी नेशन साइन टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर एफटीए. ठीक है. इंडिया जीसीसी नेशंस sign terms of reference for FTA, that is free trade agreement. ठीक है ना?
GCC stands for Gulf Cooperation Council. Signed the terms of reference, ये तो हम लिख ही चुके हैं, terms of reference for FTA. Merchandise GCC countries कौन सी है, this is important. GCC countries are Bahrain, Kuwait, ओमान, ये सारी लिख लो, सऊदी अरेबिया, यूएई. उसके बाद ऐसी फ्लैग स्टेट्स प्रेफरेंस फॉर एडहॉक डीजीपी अपॉइंटमेंट्स. सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड states were avoiding appointment of regular directors general of police. So there's a particular judgment which talks about how DGPs should be appointed. So it was in 2006 that Supreme Court laid down in Prakash Singh case. ठीक है ना? It laid down that DGPs must be selected by states from the three senior most officials that are there, meritorious officials impaneled by UPSC. The court had thrown. Now अब इसके अंदर वो कह रहे थे कि एक्टिंग डीजीपीज नहीं बनेंगे, ठीक है ना, बट अभी भी एक्टिंग डीजीपीज बना रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये प्रॉब्लमैटिक है. PM was absent from the Basa's motion of thanks. Motion of thanks is a parliamentary procedure in India where members formally express gratitude to the president for their address, allowing debate on government policies and priorities. So PM was absent. PM absent ये लिख लेंगे. PM absent. Lok Sabha passes motion of thanks. ठीक है ना. तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज एब्सेंट. इससे पहले भी एक बार जून 2004 में PM मनमोहन सिंह could not deliver his reply to the debate in Lok Sabha. ठीक है ना. Anurag Thakur is free to participate in BCCI affairs. Anurag Thakur is free to participate in BCCI affairs. ठीक है ना. Anurag Thakur is free to participate in BCCI affairs. He was stopped from participating 2017. Supreme Court directed Mr. Thakur to cease, that is stop and desist from being associated with working of BCCI because मतलब कुछ working of BCCI because so in January, because of his obstructionist attitude, failure to implement Lodha committee reforms, ठीक है ना, now he has apologized for the same and now he is being allowed. तो रफेल खरीद सकते हैं हम, और मैक्रोन विजिट करेगा इंडिया को जब, ठीक है. इलेक्शंस कौन कौन सी स्टेट में होने वाले हैं? स्टेट इलेक्शंस 2026. तो स्टेट इलेक्शंस होने वाले हैं असम में, केरला में, पुडुचेरी में, तमिलनाडु में,
एंड वेस्ट बंगाल में। ठीक है। यूएस शटडाउन्स 200 illegal ऑनलाइन फार्मेसीज, इंडिया बेस्ड थी, ये यहाँ से नोट कर लेंगे, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यूएस ने शट किया है। एंड दैट्स इट। इफ यू लाइक द सेशन प्लीज लाइक इट, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू कमेंट कि आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।